हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी। हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी। हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू, तेरी ही बंदगी, जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे, दिल ये कहे, जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है, तू जो है साथिया,
ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो है बड़े है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਲਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਆਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਲ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਹ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। कितनी वड्डी परमेश्वर की बख्शिश आ, राइट? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਖਤਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਸਾਹ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਜੀਵਤ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ। ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਇਤਨਾ ਨੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਜਾ ਚੈਪਟਰ 6, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੈਪਟਰ 6 ਦਾ ਵਰਸਿਸ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 17 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਾਮੀ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਾਮੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਹੋ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੋਥਾਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਾਮੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਥਾਨ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੜਕੇ ਹੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਅੱਗ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਅੱਗ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇਤਨੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਮੀਨ। ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਣ, ਗਾਣ, ਉੱਚਾ ਗਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਰਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਰਾਂ ਚ, ਸਭ ਨੇ ਗਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਆ, ਉਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਅਗਰ ਸੁਸਤੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਈਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਈਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵਜਾਓ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਜਾਓ ਔਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ 6 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਕੰਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਚੇਅਰਾਂ ਖਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਆਨਲਾਈਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਆਖਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੇਅਰਾਂ ਖਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਚਰਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਹੇ। ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੇ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ। ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਖੁਦਾ ਬਾਪ,
ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ ਬੀ ਟੂ ਲੇਟ, ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚ ਦੇਖਦੇ ਖੁਦਾਵਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾਵਾ, कि वो घरे बैठ के प्रभु जी देख सकते हैं। मगर तू चाहना प्रभु जी सारे मिल के तेरी आराधना मिलजुल के प्रभु जी एक थां इकट्ठे होके करिए खुदा बाप। तेरा बहुत शुक्राना। वर्शिप टीम नु ब्लेस कर पिता परमेश्वर। असि गाना बजाना सानू नहीं आंदा, तू सानू सिखा, तू ही सानू सिखा, तू ही बुलवा खुदा बाप। साडे गले वगैरह सब पिछे रह जाते ने, मगर चल तू मिलदा, तू सिखांदा ते प्रभु जी वो सब तो उच्चा हो जाता खुदा बाप। तेरा नाम मुबारक हो यीशु। पास्टर नु ब्लेस कर पिता परमेश्वर, जो भी वचन लेके आया। मैं नहीं कल्ला, तू मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, तू मेरे नाल है खुदा। तेरा बहुत बहुत शुक्राना खुदा बाप। कोई साडे नाल रवे या ना रवे पिता परमेश्वर, तू हमेशा साडे नाल आ। असी भी तेरे विच उसी तरह बने रहिए जिस तरह तू चाहता खुदा बाप। यीशु तेरा नाम मुबारक हो। तेरी हजूरी दे लई प्रभु जी शुक्राना पिता। असी तेरे सारे घेरे दे विच आ जाइए खुदा बाप। सब दे मनां नूं खोल दे, बुद्धि और समझ दी भरपूरी दे प्रभु जी। तेरे वचन सीख लिए खुदा बाप, जान जाइए गुंजियां गल्लां प्रभु जी तेरे को सीख सकिए खुदा बाप। यीशु तेरा नाम मुबारक हो, क्योंकि तू ही है जिसने वो काम किया कि असीं तेरे नाल मिल सके खुदा बाप। अपने आप नूं दे दिता, सिर्फ साडे लिए नहीं पूरे संसार दे लिए खुदा बाप। जिन्हां ने तैनूं जाणिया उन्होंने चानना प्राप्त किया खुदा बाप। तेरे वचना दे लई तेरा शुकराना। हर एक चीज दे लई शुक्र करदे हां प्रभु जी। उन्होंने वर्शिप करन लगे हैं, तेनू पसंद आवे पवित्र आत्मा सिखा प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मंग लैने हैं ते पा लैने हैं। सारी संगत जोर दी नाल कहे आमीन। खुदा बाप तेरा शुकराना यीशु। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। सदरक मेशक अबदनगो नूं मल दी अग विच पाया। मल दी अग विच आप खुदावन पुत्र बन के आया। सदरक मेशक अबदनगो नूं मल दी अग विच पाया। मल दी अग विच आप खुदावन पुत्र बन के आया। बंदियां ते रहिंदा है नाल सदा। ओ अपने बंदियां ते रहिंदा है नाल सदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा।
ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌਲਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜੇਲ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇਲ ਹਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇਲ ਹਿਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ, ਮੂਸਾ ਸੀ ਘਬਰਾਇਆ। ਨਾਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ, ਮੂਸਾ ਸੀ ਘਬਰਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਕਰਦੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਸੱਚੇ ਆ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। हे ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਵੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तो ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਗਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਭਜਨ ਗਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸੋਤਾ ਨਹੀਂ। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं, हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रातें को चांदनी भी सताती नहीं, रातें को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया, हमने रहमत के चश्मों से पानी पिया। तूने अक़दस से दामन को उजला किया, तूने
सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा, मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसी नासरी होगा राबर मेरा, अलमसी नासरी होगा राबर मेरा। मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी फरियाद इसलिए सुन ली कि हम यीशु के नाम से मांगते हैं। जी, हो जाएगा। ओके। मुझ पर फैला हाथ खुदा का, मुझ पर फैला हाथ खुदा का, मुझ पर फैला हाथ खुदा का। मैंने देखा है, मुझ पर फैला हाथ खुदा का। शौक सना का दाऊद की आवाज मुझे देकर, शौक सना का दाऊद की आवाज मुझे देकर, हमद कराता हाथ खुदा का मैंने देखा है। मुझ पर फैला हाथ खुदा का मैंने देखा है। मुझ पर फैला हाथ खुदा का। मांगने से पहले ही सब कुछ बख्श दिया मुझको। मांगने से पहले ही सब कुछ बख्श दिया मुझको। आशीष
जीवन भर उसने संभाला अपने हाथों में। जीवन भर उसने संभाला अपने हाथों में। प्यार सिखाता हाथ खुदा का मैंने देखा है। मुझ पर फैला हाथ खुदा का मैंने देखा है। मुझ पर फैला हाथ खुदा का। खुश हूँ मैं मजबूर वो जैसे भी रखता मुझको। खुश हूँ मैं मजबूर वो जैसे भी रखता मुझको। फजल भरा वो हाथ खुदा का मैंने देखा है। मुझ पर फैला हाथ खुदा का मैंने देखा है। मुझ पर फैला हाथ खुदा का। Roshan Bhai, thank you so much. What a beautiful reminder, you know, in these difficult times. खुदावंद का हाथ आज अगर हम पर ना होता तो हम आज जिंदों की ज़मीन पर ना होते। सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें आज तक संभाला है, इवन इस पैंडेमिक में। और खुदावंद मेरा ईमान है कि तू ही है खुदावंद जो आइंदा भी संभालेगा। सो खुदावंद की बरकत, उसकी कृपा, उसकी हिफाजत आप सब पर रहे। और जैसे हमने गाया, हम यही हमेशा अपने आप को याद कराते रहें कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ही इज लुकिंग आफ्टर अस। उसका हाथ हम पर फैला हुआ है, इसलिए हमें कुछ खौफ नहीं। हाँ, जमीन उल्ट जाए, हाँ कुछ भी हो जाए, क्योंकि लश्करों का खुदावंद हमारे साथ। सो गॉड ब्लेस यू। I have some notices that we want to share with you. So let's see them. जो Zoom और जो चर्च में बैठे उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। मुझे अफसोस है कि आज वीडियो प्रोजेक्शन वहाँ पर नहीं हो सक रही, but I hope you can at least hear us. तो बच्चों के लिए एक्टिविटी किरण ने भेजी आप सबको। प्लीज़ वो अपने बच्चों के साथ पेरेंट्स आप ज़रूर कीजिए। और अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप किरण बेटी को भेज सकते हैं। हमारी यूथ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी हैं। हर फ्राइडे को 8 बजे जूम पर ये प्रोग्राम है। और फिर अल्फ़ा यूथ का जो अल्फ़ा प्रोग्राम है वो भी हर थर्सडे को शाम 7 बजे चल रहा है। आपको याद कराना चाहते हैं कि आइंदा हफ्ते जब हम अपनी प्रेयर मीटिंग्स करेंगे मंडे टू थर्सडे 8 बजे, तो मंडे को हम लोग मेंबर्स को दावत देना चाहते हैं, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे, बल्कि जितने भी आप सुनते हैं यू कैन। तो उसमें आप अपनी पसंद की जो वर्ड्स है, जो खुदा के कलाम की जो आयत है या पैसेज है जिसने आपको ब्लेस किया है किसी वक्त, या जो आपका ऐसे एंकर बन के रही है, तो वो आप शेयर करेंगे
इसका मतलब है कि जितने भी हो, इट डजंट मैटर, और उस वर्ड्स या उस पैसेज के साथ आप फिर अपनी पसंद का गीत हमें बता सकते हैं, और वो हम सबके लिए चलाएंगे, बजाएंगे, और सारे मिलकर इस तरह से खुदा का कलाम और उसके गीतों के वसीला से मंडे को हम ऐसा करेंगे। और ट्यूसडे के लिए मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि अगर आपके पास आपकी जिंदगी में कोई गवाही है, नॉट नेसेसरीली कि इस महीने में या इन हफ्तों में या इस दिन, वो भी हो सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी की गवाही जो आपने कभी किसी के साथ बांटी नहीं है और आप चाहते हैं कि आप वो चर्च के साथ शेयर करें, सो ट्यूसडे को हम लोग फिर गवाही और एक गीत, अगर आपका गवाही के साथ कोई रिलेटेड गीत है वो सुन सकते हैं, वर्शिप करेंगे और गवाहियां सुनेंगे, और इस तरह से खुदा की शुक्रगुजारी हम करेंगे ट्यूसडे के दिन। वेडनेसडे को हमारा डिवोशन इसी तरह जारी रहेगा, वो जैसे कि हम पहले कर रहे हैं, और फिर थर्सडे को हम ट्रेनिंग में चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से खुदा के कलाम को हम और गहराई से समझ सकते हैं और फिर कैसे इसको दूसरों के साथ बांट सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू हियर, और ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, हम आपको तफसील बताते रहेंगे साथ साथ कि हर हफ्ते क्या क्या नए नए जो प्रोग्राम है वो हम करेंगे, ताकि हम सब इस वक्त से फ़ायदा उठा सकें और बरकत हासिल कर सकें। हमारी चर्च एनकैंपस बिल्डिंग में दूसरे और चर्चेस भी शामिल हो रहे हैं, और उस वजह से कुछ कभी कभार गड़बड़ भी हो जाती, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो है हम शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो आज जो वीडियो प्रोजेक्शन आप नहीं देख पा रहे हैं, दुआ करें कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि जब डिफरेंट पार्टनर्स आते हैं तो कई दफ़ा चीज़ें जो है हिल जाती हैं, और जिस तरह हम करते हैं वो नहीं करते, and things like that. So pray कि खुदावंद इन सब चीज़ों पर अपनी बरकत का हाथ रखे, और जब हम पार्टनर्स मिलके इस बिल्डिंग में काम करते हैं तो ये सब के लिए बहुत बरकत हो। आप अपने हदिये और अपने नजराने, अपनी टाइड्स और ऑफरिंग्स जो हैं वो भेज रहे हैं, खुदा का बहुत हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आपको ब्लेस किया, और अपने उसके दिए में से आप अपने ये गिफ्ट्स जो है, टाइड्स और ऑफरिंग्स जो हैं, खुदावंद के सामने लेके आते हैं। इस दफ़ा की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि he has been good, and because he has blessed us, we were able to bring our thanksgiving to him. तो इस महीने सो फार $1610 जो है वो खुदा के घर में आए हैं, और मेरा ईमान है कि खुदावंद हर महीने की तरह इस दफ़ा भी हमारी सारी ज़रूरियात को पूरा करेगा, और there will be enough for us, and not only for us but also to share with other people for mission work and for others who are involved in the work of God. तो खुदा का शुक्र करते हुए हम अभी दुआ करेंगे अपनी टाइड्स और ऑफरिंग्स के लिए, और खुदावंद के सामने इनको लेके आएंगे। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे दिए में से खुदावंद हम ये तेरे सामने लेके आते हैं। हमारी दुआ है कि तू इस नजराना को, इस हदिया को, इन टाइड्स और ऑफरिंग्स को अपनी नज़र में कबूल करना, और जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला उन सब पर तेरी बरकत हो। खुदावंद तेरा हाथ हमेशा उनकी सारी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए खुला रहे, और जैसे अभी हमने गाया, खुदावंद तेरा हाथ हम पर फैला रहे खुदावंद, क्योंकि तेरे हाथ के नीचे हमारी हिफाजत है और हमारी बरकत है। मसीह यीशु के नाम में ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन आमीन। आप डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, और अगर जो चर्च में है आप वहाँ पर अपने हदिये जो हैं वो खुदावंद के सामने ला सकते हैं। And now it's time for Kids for Jesus. Thank you. Very good. Wonderful, wonderful. God bless you, Kids for Jesus. Continue to grow in Him. यहोवा तेरा भरोसा, तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। Worship team.
जीवन से आएगी बेदारी, दूर होवेगी सारी बीमारी। जब जीवन से आएगी बेदारी, दूर होवेगी सारी बीमारी। जेड़े पापा ने लगेगा सारे, यीशु अपने लहू दे नाल धोणगे। जेड़े
ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਅੰਜਲੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜਲੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੰਨੂ ਦਾ ਰੋਕਾ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਅਗਸਤ 3 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋਤੀ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਟਰਸਟ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰੇ ਡਿਲੇ ਆ ਪਰ ਡਿਨਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਗ੍ਰੇਟ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਟ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਤੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਜੀ ਰੱਸੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਸਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਨਾ ਜੈਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਵੀਕ ਕਿਡਸ ਫॉर ਜੀਸਸ। ਔਰ ਸਹਿਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਗਾਡ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਰੀਨਾ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ। ਜਸਲੀਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਰਮਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਮਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਸਰਮਨ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਉਸਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਬਬਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਮੁਝੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। आओ हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आप हमें अपने घर में लेकर आए खुदावंद। आप हमें सिखाते हैं, हर रोज सिखाते हैं खुदावंद कि हम आपसे सीखें और खुदावंद आगे बढ़ते जाएं।
तेरा धन्यवाद देते हैं। तू जानने वाला खुदा है, तू सब जानता है, तेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तू जानता था इन बच्चों को जो खुदावंद तेरे बच्चों के आगे आए और जिसकी बड़ी बेसब्री से वेट हो रही थी। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं कि हमारी आंखें आप पर लग जाएं, कि हम आपके पास आएं और आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं, कब जाएं, कैसे जाएं। और खुदावंद आपका एक बार फिर हम बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। जो बैंकुट हॉल है उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। खुदावंद बड़ी देर से वेट कर रहे थे, पर आज वो दिन आया जब खुदावंद ग्रैंड ओपनिंग के लिए हम सब जा रहे हैं। खुदावंद तेरे बच्चों के लिए आशीष बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद जितनी मेहनत उन्होंने की है उनसे कहीं बढ़कर उन्हें ब्लेस करना, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। मैंने नई सीरीज शुरू की है आज से। वी गोना लुक इनटू द लाइफ ऑफ मोसेस। मूसा की जिंदगी में हम लोग देखेंगे, मूसा से सीखेंगे। आपको मालूम है कि परमेश्वर के साथ सबसे ज्यादा बात किसकी होती थी? Moses is the one who was spending 40 days। प्रभु के पास जाता था, 40-40 दिन बातें करता था और प्रभु के साथ रहता था। और मोसेस, लोग चाहते थे कि वो भी प्रभु के साथ बातें करें, पर वो जब जाते थे तो उनके कान जो थे ना वो सुन नहीं पाते थे। और वो मोसेस को कहते थे, नहीं आप खुद जाओ और आप ही खुदा से बात करो और हमें बताओ। तो मोसेस वाज वेरी क्लोज टू गॉड। और हम जो आज का मैसेज का टाइटल है वो है व्हाई इज कम्युनिकेशन विद गॉड सो इम्पोर्टेंट। परमेश्वर के साथ जो हमारी बातचीत है वो क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है जो हम परमेश्वर से, हम एक दूसरे से अगर बातचीत नहीं करते, हस्बैंड वाइफ बच्चों से बातचीत नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं है, ये नहीं मालूम कि घर में क्या हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, और कम्युनिकेशन नहीं होगी तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता। पर हमें जानते हैं कि अगर हम कम्युनिकेशन करें भी तो भी हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमारे में कौन है जो बोल सकता है कि अब से 2 मिनट के बाद क्या होगा, कल को क्या होगा, 1 घंटे के बाद हम जाएंगे फिर क्या होगा? हम में से कोई नहीं जानता। तो हम नहीं जानते कि क्या होगा, कैसे होगा, पर हम ये जानते हैं कि यहाँ प्रभु हैं जो सब जानते हैं। वो सिर्फ यही नहीं जानते कि 2 मिनट के बाद क्या होगा, वो ये भी जानते हैं कि हजारों साल बाद क्या होगा। हमारे बच्चों, हमें नहीं पता कि हमारे बच्चों के पार्टनर कौन होंगे, पर खुदा को हमारे बच्चों के भी पार्टनर जो है ना वो भी मालूम है। और उन्हें वो भी मालूम है कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे, वो सब जानता है। और एक समय था जब लोग पंडित के पास जाते थे पूछने के लिए कि पंडित जी बताओ आगे कैसा होगा, मेरे बच्चों का जीवन बताओ कैसा होगा। पर हम उस जीवित परमेश्वर को जानते हैं जो सब जानता है, और वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं, उससे बात करें। वो जब जानता है तो अगर हम उससे पूछेंगे खुदावंद तू बता, तो आप क्या सोचते हो कि वो आपसे बात नहीं करेगा? परमेश्वर धीरे धीरे सिखा रहा है। एक समय था हम बात करते थे, पर आपको मालूम है कुछ लोग बात करते हैं तो वो दूसरों को बोलने नहीं देते, वो खुद ही बात करते रहते हैं। और दूसरा आदमी वेट करता है कि कब ये चुप करेगा तो मैं बात करूंगा। तो हम भी खुदा के साथ कभी कभी ऐसा करते कि हम खुदा से 1 घंटे की लंबी दुआ करते, नॉन स्टॉप, सा भी बीच में नहीं लेते, लगातार दुआ करते हैं। और 1 घंटे के बाद कहते हो कि आमीन बाय। तो खुदा का जो कनेक्शन है वो हम उधर से बंद कर देते हैं कि भाई हमने अपना बता दिया। पर हमारे जो अलायंस के लीडर्स हैं उन्होंने हमें सिखाया, वो जाते हैं ऐसे बैठ जाते हैं और बैठते हैं, कहते खुदाबंद मैंने कुछ नहीं कहना, बस मैंने तेरे से सुनना है, मैं बैठा हूं, तू मेरे से बात कर खुदाबंद। पहले वो कहते थे हम प्रेयर करते थे, बुक पढ़ते थे, कुछ मेडिटेट करते थे, कहते अब हम जाकर शांत होकर बैठ जाते हैं कि खुदाबंद जब तक तू बात नहीं करेगा मैं तो यहां ही बैठा हूं, मेरे से बात कर, मुझे बता। तो खुदाबंद बोलता है, वो गूंगा नहीं है, वो बोलता है।
और उसकी आवाज हम कानों से नहीं सुनते, हृदय के कानों से सुनते हैं। तो मैं लास्ट वीक का इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, जो लास्ट वीक मेरे साथ हुआ। 2006 में रॉकी व्यू चर्च में एक सिस्टर आती थी ऑस्ट्रेलिया से, 2006 में, और वो हमेशा कांटेक्ट में थी। मे बी साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो मुझे कॉल कर लेती थी, भाई मेरे बच्चों के लिए दुआ करो, वो बड़े हो रहे हैं, उनके जीवन साथी के लिए दुआ करो, मुझे बड़ी फिक्र है, मेरे हस्बैंड बिलीवर नहीं है, अगर मैंने कोई क्रिश्चियन बच्चा नहीं देखा तो वो दूसरे बच्चों के साथ शादी कर देंगे, तो प्लीज आप दुआ करें। तो वो मेरे कांटेक्ट में थी 2006 में। और उसके बाद अभी अबाउट मे बी कपल मंथ्स गो, मंथ एंड हाफ गो, उसका फोन आया कि भाई मेरी माम को पेट में ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, तो प्लीज आप हॉस्पिटल में जाएं और दुआ करें। और आपको मालूम है मुझे हॉस्पिटल वालों ने एक आईडी दी हुई है, मैं अंदर जा सकता हूं। और उस बहन ने क्या किया, उस बहन ने हॉस्पिटल वालों को फोन कर दिया कि पास्टर जी आ रहे हैं, वो दुआ करेंगे मम्मा के लिए। तो उन्होंने जो उनके फैमिली के मेंबर थे उन्हें भी बंद कर दिया कि नहीं, सिर्फ आपकी फैमिली में, पहले ये होता था कि कोई भी 2 मेंबर चले जाएं। जब उस सिस्टर ने फोन किया तो उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि जो आपकी फैमिली में भी 2 मेंबर हैं, सिर्फ वही 2 मेंबर उन्हें विजिट कर पाएंगे, दूसरा और कोई नहीं विजिट कर पाएगा। तो फैमिली ने मुझे बुला रखा था और मैं बिल्कुल हॉस्पिटल के पास था। तो तभी मुझे कॉल आई उनके ग्रैंडसन की कि अंकल आई एम सो सॉरी, आंटी ने सब कुछ खराब कर दिया। उसने फोन कर दिया उधर से, ऑस्ट्रेलिया से, और डॉक्टरों ने हमारा भी, जो हम जिनको लेकर जाते थे उनका भी बंद कर दिया। तो मैं बिल्कुल फोर्टेल हॉस्पिटल के पास था और मैं वापस आ रहा हूँ और मन ही मन में सोच रहा हूँ कि बहन तुझे क्या जरूरत थी, तूने क्यों फोन किया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तो मैं दिल ही दिल में सोच रहा हूँ था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो माता को प्रभु चाहिए था, वो मैं जाता, बिल्कुल पास में था। तो मैंने भी सोचा, उसका जो नेफ्यू था उसने भी काफी आंटी को बोला कि आंटी आपने अच्छा नहीं किया। तो काफी जैसे बंद हो गया काम। तो हुआ क्या कि 3 वीक्स वो माता हॉस्पिटल में थी और मैं भी नहीं जा पाया, उनके घर के दूसरे मेंबर भी नहीं जा पाए, और फाइनली जो थी ना मदर, वो घर आ गई। तो मुझे उसके नेफ्यू का फोन आया, उसके ग्रैंडसन का फोन आया माता की। तो वो कहता कि मामा अब घर आ गई, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो। तो तब मेरे घर में रेनोवेशन हो रही थी। तो रेनोवेशन भी ऐसी थी कि जैसे मैं 1 सेकंड के लिए भी घर से जा नहीं सकता था, सामान लाओ, ये करो, बड़ी मुश्किल थी। तो मेरे दिल में फिर वही बात आने लगी कि भाई पहले तो वो रुकावट आ गई, अब मैं जाना चाहता हूं तो घर का कैसे छोड़कर जाऊं। वो कह रहे आ जाओ, मेरे पास सामान नहीं है, जो काम करते हैं वो खड़ जाते हैं कि भाई ये सामान ला कर दो तो काम करेंगे। तो मैं मन ही मन में सोच रहा हूं तू रुकावट क्यों आ रही है। तो एनीवेज थर्सडे को मैं उनके घर में गया, तो उनकी माता और माता का बेटा और बहू तीनों घर पर थे, और तीनों ने प्रभु का वचन सुना और तीनों ने अपनी लाइफ प्रभु को दे दी। तीनों के नाम जीवन की पोथी में लिखे गए। और खुदा मेरे दिल से बात कर रहा है, बेटा तू मुझे समझा नहीं अभी तक भी। हॉस्पिटल का रास्ता उसने बंद नहीं किया था, मैंने किया था। मैं चाहता था कि जब ये तीनों घर पर हो तब तू जाए। और मैं चर्च आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, खुदा ने हर बात के लिए समय निश्चित किया है। हम सब अपनी अपनी लाइफ में, हम सब की लाइफ में बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं। यहां पर हम खुदा को क्वेश्चन करते हैं कि वाई लॉर्ड, वाई दिस हैपन टू मी, क्यों खुदावंद, क्यों नहीं अभी तक ये हो रहा। पर खुदावंद कहता है बेटे धीरज करना सीख, तू विश्वास रख मेरे पर। मेरे पास जो योजनाएं हैं वो भलाई की योजनाएं हैं। ज्योति के लिए सिस्टर ने शेयर किया कि हमारी बात होती थी, नहीं ज्योति बस ये ठीक है, ज्योति जल्दी से बात कर दे, बस शादी कर दे। नहीं, खुदा को मालूम है कि वो शादी सक्सेसफुल नहीं होगी।
इसीलिए खुदा चाहता था कि हम वेट करें, वेट करें, वेट करें, और फाइनली जो हम चाहते थे, ज्योति को हम कहते थे कि ज्योति मेरी सिर्फ एक ही डिजायर है कि तू जिससे डेट करे बेटा वो प्रभु को जानता हो। और क्या मालूम था कि वो बेटा कहां पर बैठा हुआ है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि उस परमेश्वर को फ्यूचर मालूम है, आप उस पर विश्वास रखें। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके क्वेश्चन का आंसर अभी हमें नहीं मिलेगा, पर जब समय आएगा तो आप सब समझ जाओगे कि परमेश्वर ने ये सब क्यों किया। कभी कभी हम लोग परमेश्वर से गुस्से हो जाते हैं कि परमेश्वर इतनी देर से दुआएं कर रहे हैं, आप हमारी दुआ को सुन ही नहीं रहे। तो मोसेस की लाइफ के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है? आपको मालूम है कि जब खुदावंद ने अब्राहम को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, प्रॉमिस ही किया था, अभी बेटा दिया नहीं था, तो उस प्रॉमिस के साथ परमेश्वर ने उसको ये भी बोला था कि तेरी जो संतान है वो 400 साल गुलामी में बिताएगी, 400 years वो गुलामी में बिताएगी। और देखो परमेश्वर को फ्यूचर मालूम था। अब्राहम को तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरा बेटा होगा, वो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, पर खुदावंद को सब मालूम था। इसीलिए खुदावंद ने बोला था कि वो 400 साल गुलामी में बिताएंगे। और फिर जब यूसुफ गया, यूसुफ के साथ देखो कैसे कैसे इंसिडेंट हुए, भाइयों ने कैसा कैसा काम किया। और जब यूसुफ मिस्र में गया तो कैसे फिर अकाल जो पड़ा, उसके बाद जो थोड़े से लोग गए थे, और 400 साल में खुदा ने उन्हें कितना मल्टीप्लाई किया। और 400 साल के बाद, ऑलमोस्ट 400 साल से कुछ समय पहले मोसेस पैदा हुआ। और मोसेस के बारे में हम जानते हैं कि खुदा ने मोसेस को किस बात के लिए चुना था? कि वो अपने लोगों को क्या करेगा, मिस्र से छुड़ाकर वापस प्रॉमिस लैंड में लेकर आएगा। और जब मोसेस ने ये काम शुरू करना शुरू किया तो मोसेस हैव न्यू कम्युनिकेशन विद गॉड। मोसेस की कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ नहीं थी। मोसेस जो भी कर रहा था, जो वो देख रहा था, जो वो समझ रहा था, उसके मुताबिक कर रहा था। तो मेरे साथ आप जेनेसिस चैप्टर 15 नहीं सॉरी कूच का दूसरा भाव, कूच उसका दूसरा भाव, उसकी 11 से 15 आयत। एक्सीडस चैप्टर 2 वर्स 11 to 15। पंजाबी की बाइबल में कूच, अगर किसी के पास पंजाबी की बाइबल है तो वो पेज 81, आगे से पेज 81, उसकी 11 से लेकर 15 आयत मैं पढ़ूंगा आपके साथ पंजाबी में। हुण मूसा जवान हो गया सी। एक दिन वो अपने लोकां तो हुंदी वंगार नूं देखण गया। उत्थे उसने एक अबरानी नूं एक मिस्री तो मार खांदे देखिया। उसने तुरंत चारे पासे देखिया अते उस मिस्री नूं मार के रेत विच लुका दिता। फिर जदों वो अगले दिन अपने अबरानी भरावां नूं देखण गया तां उसने उन्हां विचों दो नूं आपो विच लड़दे देखिया। उसने उन्हां विचों एक नूं जो दूजे नूं मार रिहा सी कहा, तू अपने भरा नूं क्यों मार रिहा है? पर उस आदमी ने उत्तर दिता, तेनू किसने साडा राजा जां जज थापिया है? की तू मैनू कल वाले मिस्री की तरह मार देवेगा? ये सुन के मूसा डर गया अते सोचन लगा। सो इस गल का पता सब नूं लग गया है। जदों राजा नूं इस गल का पता लगा तां उसने मूसा नूं मारन दी कोशिश की। इसलिए मूसा उत्थों नड के मदियान देश विच रहन लगा। सो वचन के इस हिस्से से हम क्या सीखते हैं? 3 questions we can ask from God.
व्हाट, क्या, वो हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें। मूसा ने ये क्वेश्चन खुदा से नहीं पूछा कि खुदावंद तू मुझसे क्या चाहता है। वो जो उसने अपनी आंखों से देखा, जो उसके दिल ने महसूस किया, उसने वो जल्द से एक्ट कर दिया। पहली बात क्या, व्हाट, वो हमसे क्या चाहता है कि हम करें। और दूसरा क्वेश्चन खुदा से करें, हाउ, कैसे करें, किस तरह, वो कैसे चाहता है कि हम इस बात को करें। अगर मूसा परमेश्वर से पूछता कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, खुदावंद तू कैसे चाहता है, मैं कैसे करूं, मैं इस मिस्री को मार दूं। हमारी बहन नीरू ने शेयर किया था दाऊद के बारे में कि दाऊद सारी बातें खुदा से पूछता था, खुदावंद मैं उन पर हमला करूं तो मुझे जीत देगा। तो खुदा कहता है तू जा, मैं तुझे जीत दूंगा। जोशुआ सिर्फ एक दफा उसने नहीं पूछा था जब उसने आई पर हमला किया, वो हमेशा पूछता था। उसने सोचा आई में तो थोड़े से लोग हैं, इतने मैंने इतनी बड़े बड़े लोगों को जीत लिया, 3 लोगों को मैं क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। उसने खुदा से नहीं पूछा क्या, और वहां पर उसे हार मिली। जब हम खुदा से पूछते हैं, जब खुदा हमारे लिए अवेलेबल है, तो हमें सिर्फ ये पूछना है, खुदावंद तू हमें बता कि हम कैसे, किस तरह प्रोसीड करें, किस तरह से हम इस बात को करें। और तीसरी क्वेश्चन जो हम खुदा से करते हैं वो व्हेन, कब। जो समा ज्योति के लिए ठहराया था उससे पहले अगर हम चाहते तो क्या वो होता? कभी भी नहीं होता। हम चाहते हैं, खुदा ने बच्चे के लिए 9 मंथ्स रखे हैं मां के पेट में। अगर कोई बाप एक्साइटेड होकर कहे मुझे तो 4 दिन में ही दे दो, प्रभु जी मैं एक्साइटेड हूं, मुझे तो 4 दिन में बस अभी जल्दी से बच्चा दे दो, क्यों नहीं खुदा देगा? क्योंकि देयर इज अ प्रोसेस। 9 मंथ की प्रोसेस में बच्चे का माइंड भी डेवलप होना है, हाथ भी डेवलप होने हैं, बॉडी भी डेवलप होनी है। खुदा ने हर बात के लिए समय ठहराया है। उपदेशक की पोथी में लिखा है खुदा ने हमारा जीने का, मरने का, खुशी का, गम का, हर बात का समय ठहराया है। और खुदा चाहता है कि उसके बच्चे उससे बात करें। वो बात करता है, वो सुनता है। तो ये 3 क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। When would be the right time according to his perfect will? कब खुदावंद ये सही समा होगा, बिल्कुल जो तेरी इच्छा के मुताबिक है। हम खुदा की इच्छा पर अपनी इच्छा फोर्स कर देते हैं। मैं जब ये वचन की तैयारी कर रहा था, मैंने सोचा कि जैसे एक स्लेट पर मैं ले जाऊं, उस पर लिख दूं खुदावंद मैं बेटी के लिए ये, बेटे के लिए ये, और वाइफ के लिए ये, और अपने लिए ये चाहता हूं। और खुदावंद कब करेगा तू? खुदा के पास जब हम खाली स्लेट लेकर जाते हैं तो खुदा को कहते हैं खुदावंद तेरी क्या प्लानिंग है, कैसे उस प्लानिंग में तू चाहता है कि मैं तेरे साथ चलूं, कैसे उस प्लानिंग में अपने बच्चों को तेरे राहों पर चलाऊं। कब खुदावंद उनके लिए तू चाहता है कि मैं एक्ट करूं, कब उनके लिए जीवन साथी देखूं, तू मुझे बता। तो ये 3 क्वेश्चन जब हम खुदा से पूछते हैं तो खुदावंद हमें क्या करता है? वो गाइड करता है। जो मोसेस की स्टोरी को हम देखते हैं, मोसेस के बारे में क्या देखते हैं? ही वॉज गेटिंग हेड ऑफ गॉड। वो खुदा से भी आगे जा रहा था। अभी 40 साल पड़े थे। खुदा ने बोला था कि 400 ईयर्स, 400 साल ये गुलामी में रहेंगे, और अभी 40 साल पड़े थे। और मोसेस चाहता था कि वो 40 साल पहले ही उस काम को पूरा कर दे, पर खुदा को मालूम था वो समा अभी नहीं आया है। और इसीलिए वो मूसा ने क्या किया? मूसा का जो फोकस था वो खुदा से हटकर क्या लग गया?
उसने उस हालात को देखा, उसके दिल में अपने लोगों के लिए प्यार था। उसे मालूम था कि मैं हिब्रू हूं, अबरानी हूं, और वो देख रहा था कि इजिप्शियन कैसे अबरानी लोगों को मारते हैं, तंग करते हैं। और वो उसका जो फोकस था, जब उसने देखा अबरानी लोगों को मार पड़ते हुए, तो उससे रहा नहीं गया। तो उसके मन में जो आया उसने वो जल्दी से कर दिया। और कि जबकि परमेश्वर की योजना में, अगर आप जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 13 में देखेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 15वां चैप्टर उसकी 13 आयत में देखेंगे, अगर आप 18 पेज है पंजाबी की बाइबल में, प्रभु ने अब्राहम ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਵੰਸ਼ ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? अत्याचार करेंगे। की हो रहा अत्याचार? प्रभु ने अब्राहम को उस समय बोला था जब उसके पास बेटा भी नहीं था। खुदा ने बोला था कि तेरे जो जनरेशन है उसके ऊपर क्या होगा? अत्याचार होगा। और आगे क्या लिखा है? और वो 400 साल तक उन्हें अपने दास बनाए रखेंगे। 400 साल तक। ऑफ कोर्स वो चलाते थे, खुदा को पुकारते थे, पर वो समा जो खुदा ने ठहराया था वो नहीं आया था। जो खुदा हमें एक बात सिखलाता है, इस बात से कि खुदा ने, हम दुआएं करते हैं, हम मांगते हैं खुदा से, पर हम ये क्यों नहीं समझते कि खुदा ने जिस बात के लिए समा नहीं ठहराया अभी, जब हम उसे करने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगी, वो सक्सेस नहीं होगी। तो अभी 40 साल पड़ी थी और मूसा ने बजाय वो परमेश्वर को सीख करता, परमेश्वर को पूछता, खुदावंद तूने मुझे बचाया है। देखो उस वक्त क्या होता था, जितने भी हिब्रू बच्चे थे वो खत्म हो जाते थे, मार देते थे जो लड़के होते थे। पर मूसा को खुदा ने प्रोटेक्ट किया, बचाया। राजा के घर में वो बड़ा हुआ और मूसा वाज कनेक्टेड टू गॉड, बट कम्युनिकेशन वाज वेरी वीक। कम्युनिकेशन नहीं थी। और मूसा ने परमेश्वर से पूछने की बजाय अपने मन की जो प्रेरणा थी उसके हिसाब से उसने इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहा। और दूसरी बात, मोसेस आप राजमहल में बड़ा हुआ, उसको राजकुमार जैसी ट्रेनिंग मिली। आप क्या सोचते हो कि वो कम बलवान होगा? राजाओं के बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है लड़ाई के लिए, तो मोसेस ने वो ट्रेनिंग भी ली। और मोसेस यहां पर क्या कर रहा है? खुदा की ताकत की बजाय अपनी ताकत से वो लोगों को छुड़ाना चाहता है। वो अपनी स्ट्रेंथ, वो जानता है कि मेरे में बहुत बल है, पर इतना बल नहीं है कि वो समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दे। आगे खुदा ने कैसे अपने लोगों को आजाद किया, हम आगे जाकर इस सीरीज में देखेंगे। पर हम ये देखते हैं कि मूसा ने जो एक्ट किया वो अपनी ताकत से किया। और तीसरी बात, आपको मालूम है कि मूसा का ये एक्ट किस बात में था? गुस्से में था। उसे गुस्सा आ गया था। जब इब्रानी लोगों पर अत्याचार हो रहा था तो मूसा को गुस्सा आया, गुस्सा लगा कि मेरे लोगों को ये कर रहे। तो गुस्से में किया हुआ काम क्या होता है? खुदा की तरफ से नहीं होता। हम सब जानते हैं अपने जीवन में हमने बड़े बड़े ऐसी मिस्टेक्स की हैं जहां पर हम गुस्से में आकर कोई फैसला ले लेते हैं और फिर बाद में हम क्या करते हैं? पछताते हैं। और चौथी बात थी कि मूसा, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, मूसा को क्या करना पड़ा? जब उसने उस आदमी को मार दिया, उसे महल छोड़कर जाना पड़ा। अच्छी जगह पर रह रहा था, राजा से भागकर अपनी जान बचाने के लिए जाना पड़ा। जब उसने गुस्से में ये एक्ट किया था,
उसने ये रियलाइज नहीं किया था कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। और कितनी दफा हम गुस्से में एक्ट करते हैं और बाद में हम बहुत रिग्रेट करते हैं कि मैंने गुस्से में जो कह दिया वो मेरे मुंह में वापस अभी नहीं आने वाला। अब क्या होगा, निकल गया, बंदूक से गोली निकल चुकी, वो लग गई किसी को। और इसीलिए कहते हैं कि जब गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए, अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। खुदा को कहना चाहिए, खुदावंद आप मुझे शांत कर दो, मुझे शांत कर दो, मेरे दिल में गुस्सा है, मैं जो भी फैसला करूंगा या करूंगी वो खुदावंद उसके कॉन्सिक्वेंसेस आगे क्या होंगे मुझे नहीं मालूम। रिलेशनशिप्स को बनने में कई साल लग जाते हैं और गुस्से में आप उस रिलेशनशिप को 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं। इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और थोड़े से गुस्से से आप उसे खराब कर लेते हैं। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी ये बातें करूंगा कि बेनिफिट क्या है जब हम खुदा के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। मूसा ने खुदा के साथ कम्युनिकेट नहीं की तो उसके हमने नुकसान देखे, पर बेनिफिट क्या है जब हम खुदा से बात करते हैं तो गॉड विल प्रोवाइड एवरीथिंग वी नीड। आगे सीरीज में देखेंगे कि परमेश्वर उसे लाठी दे रहा है, उसे कह रहा बस तूने ये लाठी को ले ले, जैसे मैं तुझे कहूंगा तो उससे करना। उस लाठी से वो अपने लोगों को वहां से लेकर निकल रहा है। खुदा ने उसे वो शक्ति दे दी मूसा को, चमत्कार करने वाली, वो आगे सीरीज में देखेंगे। पर व्हेन वी कम्युनिकेट विद गॉड, मूसा की आगे नेक्स्ट वीक हम मूसा की कम्युनिकेशन देखेंगे खुदा के साथ। जब उसकी कम्युनिकेशन हुई खुदा के साथ तो हम देखेंगे कि उसका बेनिफिट क्या हुआ। गॉड विल प्रोवाइड एवरीथिंग वी नीड, बजाय इसके कि हम अपनी शक्ति से और अपनी बुद्धि से बात करें, चाहे वो हमारे जीवन साथी के लिए है, चाहे वो हमारे बच्चों के लिए है। मेरी जिंदगी का लेसन है, मैं और मेरी वाइफ बातें जब हम बच्चों को फोर्स करते थे कि आप ये नहीं करो, आप ये नहीं करो, आप ये करो, वो नहीं सुनते थे। जो हम कहते थे वो एग्जैक्टली बिल्कुल उसकी दूसरी दिशा में जाते थे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि वी नॉट गोना टेल देम व्हाट टू डू, वी गोना टेल आवर हेवनली फादर। हम पिता को बताएंगे, वो इनके दिल से बात करेगा। अब हम उन्हें नहीं बता रहे हैं, हम खुदा को बता रहे हैं। खुदा उनके दिल में बात डाल रहा है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, और हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, काम हो गया। कितना परेशान होते थे, इनके साथ कहते थे कुछ भी नहीं होता था, परेशान भी होते थे। तो मैं देख रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं, काम हो गया। एक दफा बेटी के लिए डॉक्टर ने बोला कि ये थोड़ा पहले मैच्योर पैदा हुई है, पहले टाइम से पहले पैदा हुई है, तो इसीलिए इसको शायद एक क्लास पीछे करना पड़ेगा, इसका जो माइंड है वो ग्रो नहीं हुआ, तो ये स्ट्रगल करती है स्टडी में। तो आपको किसी से स्पेशलिस्ट से मीटिंग करनी पड़ेगी, बच्ची के लिए देखना पड़ेगा। तो हमने बात की लोगों के साथ, डॉक्टर्स के साथ, स्पेशलिस्ट के साथ। उनकी जो वेटिंग थी वो थी 9 months, मोर देन ईयर। तो हमने दुआ करनी शुरू कर दी कि खुदावंद तूने हमें बेटी दी है, तूने सब कुछ किया, तू सब कुछ करने वाला है। तो वो उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आई थी, उससे पहले टीचर का फोन आ गया, क्या किया है आपने, आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक हो गई है, वो तो स्टडी में बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। कौन कर रहा था? खुदा कर रहा था। खुदा से बहुत से लोग हैं, खुदा ने कहा धन्य हैं आप क्योंकि आपकी आंखें देखती और आपके कान सुनते हैं। बहुत से लोगों ने चाहा कि वो देख सके, सुन सके, पर वो सुन नहीं सकते। हमारे लिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। और हम कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुदा से नहीं पूछते, हम और सभी लोगों को पूछ लेते कि ये हालात है, हम क्या करें, इधर भागे, आपका एक्सपीरियंस है, आप हमें बताएं क्या करें। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे मोसेस ने किया था, वो जो उसके मन में आया उसने वो कर दिया। बड़ा खतरा होता है। मन की बजाय हमें वो करना है जो खुदा चाहता है। पहला बेनिफिट था
गॉड विल प्रोवाइड एवरीथिंग वी नीड। दूसरा बेनिफिट, द लॉर्ड विल गिव अस स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। जब मूसा कम्युनिकेशन करेगा ना खुदा के साथ, फिर खुदावंद के साथ वो ना एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देगा खुदा उसे। पहले नहीं दी क्योंकि उसने पूछा नहीं। खुदा कहता तू मुझे पुकार तो मैं क्या करूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। जब हम खुदा को पुकारते हैं, जब हम खुदा से पूछते हैं, तो सुनने के लिए बैठते हैं, तो खुदावंद हमें इंस्ट्रक्शन देता है। और आप लोगों को मालूम होगा, अपने जीवन में आपने महसूस किया होगा, जब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट आए होंगे जब जहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आप खुदा के सामने बैठे और खुदा से पूछा, खुदावंद गाइड मी, एंड आपको दिल में और वचन के जरिए जबूर खोला, ये मेरा आंसर खुदा ने मुझे दिया है, ये जबूर आज मेरे लिए खुदा ने दिया है, ये वचन का हिस्सा मुझे दिया है, किसी से कंफर्मेशन मुझे दी है। तो खुदावंद क्या करता है, दूसरा बेनिफिट है कि वो हमें एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है। और तीसरा बेनिफिट क्या है, गॉड विल रिमूव अवर फियर। मूसा के दिल में क्या आया था, डर आ गया था, भाग गया था वो। जब हम खुदा से इंस्ट्रक्शन लेंगे, वो ही मूसा अभी राजा के पास जाएगा पर उसके दिल में फियर नहीं है। वो राजा को जाकर बोलेगा पर उसके दिल में ये डर नहीं है कि राजा मुझे क्या कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं गया, वो खुदा की इंस्ट्रक्शन के साथ वहां पर गया है। और गॉड विल रिमूव अवर फियर। कुछ भी आगे जाकर करना है ना, तो फियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी तरफ से थोड़ी है। समुद्र को कौन दो हिस्सों में कर रहा था? खुदा कर रहा था। पीछे सेना को कौन पकड़ रहा था? खुदा देख रहा था। वो सारी सेना को क्या करते, उसके साथ कैसे लड़ते? खुदा उनके साथ उसे डिस्ट्रॉय भी किया, अपने लोगों के लिए रास्ता भी बनाया, इंस्ट्रक्शन भी दी, डर को भी दूर किया। एंड हम देखते हैं फिर कि उससे हम क्या होगा, हम आगे एक बात और भी सीखेंगे कि फिर आगे से कोई ऐसी बात आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, सीधे खुदा के पास जाना शुरू कर देंगे। ये हमारे मसीहियों के लिए ब्लेसिंग है। खुदा हमें ये बात बार बार सिखाना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है कि बेटा तू कहीं भी भाग जा, कोई तेरी मदद नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ हूं। जब वो मुझे इंस्ट्रक्शन देके भेजेगा मोसेस को, जा हरून के साथ, हरून वहां पर तेरी वेट कर रहा है, वो तेरी तरफ से बात करेगा। जब वो मुझे किसी के साथ भेजेगा तो वो मेरे जाने से पहले उसके साथ भी बात करेगा कि देख मैं उसे ला रहा हूं, तूने उसकी ये मदद करनी है। तो वी विल लर्न कि भी आगे हमने क्या करना है जिंदगी में। सीख लिया, हम खुद भी सीख लिया, अभी हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि बेटा मैंने अपनी जिंदगी से ये लेसन सीखा है, मैं तुझे भी बताता हूं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो बातें करता है, वो आपको बोलना चाहता है, बस आपको क्या करना है, सुनना सीखना है, खुदा से सुनना सीखना है उससे। जब हम खुदा की इंस्ट्रक्शन के साथ चलेंगे तो फिर वो हम अकम्प्लिश कर पाएंगे जो हम अपनी ताकत से कभी नहीं कर पाए थे। उसके पास बेस्ट है, उसकी प्लान जो है वो बेस्ट है। जब आपने मूसा की तरह खुदा की बात को नहीं सुना, अपने दिल की बात को सुना, तो आपको क्या नुकसान उठाना पड़ा। मूसा के बारे में देखा कि उसे वहां से भागना पड़ा, राजा का महल छोड़ना पड़ा। जब आपने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन जो थी वचन में, प्रार्थना में, आपके हृदय से पवित्र आत्मा ने बात की, जब आपने उस बात को बंद कर कर अपने दिल की बात से, अपने मन की सोच से वो काम किया, तो आपको कौन सा नुकसान उठाना पड़ा। अपने जीवन में आपने कोई ना कोई कार्य ऐसा किया होगा
आप सोच सकते हैं कि कौन सी बातें, कॉन्सिक्वेंसेस उनके क्या हुए और उसका रिजल्ट क्या हुआ। जब खुदा की इच्छा की बजाय अपने मन की इच्छा पर काम किया तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब आगे से आप हेल्प के लिए कहां पर जाएंगे? अपने मन की बात सुनेंगे? मन आपको कहता रहेगा, परेशान करता रहेगा, वैरी आपके मन में बातें डालता रहेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। और हमारा खुदा क्या कहता है? वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला खुदा है, वो मुर्दा को जिंदा करने वाला खुदा है। हमें खुदा पर विश्वास करना है या अपने मन पर विश्वास करना है? मन कहेगा कि नहीं नहीं, तेरा बच्चा अगर ऐसा है ये नहीं सुधर सकता है, ये ऐसा ही रहेगा। पर खुदा कहेगा बेटा, मैंने बड़े बड़ों को, पॉल को बदल दिया है, मैंने बड़े बड़ों को, मुर्दों को जिंदा कर दिया है। सारा जब हंसी थी कि इस उम्र में मैं कैसे मां बनूंगी, तो खुदा कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है। हम उस खुदा के बेटे बेटियां हैं जो सब कुछ कर सकता है। क्वेश्चन हमारे लिए ये है, when God guides us through the word of God, आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी, do we obey or disobey? क्या हम खुदा की बात को सुनकर कहते कि लॉर्ड आई नो बेटर देन यू, जबकि हम फ्यूचर की एक बात भी नहीं जानते, वो जानता है। तो जब हम अबे करते हैं मुश्किल डिसीजंस में भी, मूसा भी कह रहा है, आगे जाकर देखेंगे मूसा बोलेगा नहीं खुदाबंद मैं ये नहीं कर सकता। खुदाबंद को मालूम है मैंने तुझे चुना ही इसी बात के लिए है, मैं तुझे शक्ति दूंगा। तो वी नीड टू ट्रस्ट गॉड, नॉट अवर ओन एबिलिटी की भी मेरे में ये बात नहीं है, इसमें ये बात नहीं है। वी नीड टू ट्रस्ट अवर हेवनली फादर एंड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस बनाते हैं हम लोग। मूसा ने भी बड़ी एक्सक्यूजेस बनानी, नेक्स्ट वीक में देखेंगे। नहीं खुदावंद मैं मेरी जुबान जो है वो नहीं चलती, मैं तुतलाता हूं। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। इफ यू वांट टू स्पीक टू हिम, ही इज लाइव। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना में बैठें, मन को शांत करें, कम बोलें, ज्यादा सुने। खुदावंद व्हाट, व्हेन, हो, किस तरह से तू चाहता है कि मैं ये सब करूं। एंड पास्टर जॉनसन ने ऑलमोस्ट 2.5 months सीरीज शेयर की थी हमारे साथ, हाउ टू हियर गॉड्स वॉइस। आपके पास नोट्स भी होंगे। तो हम प्रैक्टिस भी चाहते थे कि यहाँ पर ही आप लोग प्रैक्टिस करें। 3 लोग बैठे और खुदा को बोले खुदाबंद आज हमसे बात कर, और शेयर करें एक दूसरे से। और वो हमारा जिंदा खुदा, वो चाहता है कि हम कम बोलने वाले ज्यादा सुनने वाले बन जाएं। गॉड ब्लेस यू। लेट अस प्रे। प्यारे खुदाबंद धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु आपका, जो आपके दासों के जरिए आप हमें सिखाते हैं, जो आपकी आत्मा के जरिए सिखाते हैं। खुदावंद धन्यवाद देते हैं, तूने हमें शारीरिक से आत्मिक बना दिया। खुदावंद हम शारीरिक तौर पर तो बातें सुनना जानते हैं, पर आत्मिक तौर पर हमें बातें सुनने वाले बना। खुदावंद तेरी आवाज को वचन के जरिए सुनने वाले नहीं, बल्कि उस पर चलने वाले बना। खुदावंद तेरे पर विश्वास करने वाले बना, कि प्रभु हम हर बात में तेरे पर विश्वास रखें। जो बातें अभी तक नहीं हो रही, तेरे बच्चे जिस बात के लिए बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, खुदावंद तुझे सब मालूम है, सिर्फ तुझे मालूम है। और खुदावंद मैं चाहता हूं
कि तब तक तू उन्हें तसल्ली दे खुदावंद, वो तेरे से बात करें और तू उन्हें बताएं कि बेटा मैंने तेरे लिए ये समा रख रखा है, बेटी मैंने तेरे लिए ये समा रख रखा है। खुदावंद तू अपने बच्चों से बातें कर, उन्हें तसल्ली दे, और खुदावंद हम सबको बुद्धि दे खुदावंद कि हम लोगों के पास जाने की बजाय आपके साथ बैठना सीखें, आपसे बात करनी सीखें, और खुदावंद हम कम बोलें और ज्यादा सुनें। आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस एवरीवन। और ऐसे ही हम खुदा की बातें सुनने वाले और फिर उन पर अमल करने वाले बन जाएं। आइए अपने हाथ ऐसे खोलें और बरकत को रिसीव करें जो उसने हमारे लिए रखी है। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जे करे और तुझे सलामती बख्शे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस के नाम से आमीन। God bless, have a wonderful day and we'll see you again. Bye bye.